मैंने तो नहीं आया। हाँ जी। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी। Be ready for Priksha meditation. Now select a comfortable posture for your body from the following. Simple cross-legged posture, full lotus posture, half lotus posture या diamond posture. And select any one of the mudras of your hands. ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा. Close your eyes softly with your spine and neck in a straight line. Start the meditation session with the recitation of Mahaprandhvani. Inhale fully and then exhale deeply as long as you can. Exhaling slowly. Produce the sound through the nostril like the buzzing of a bee. ओम का उच्चारण 3 बार. तीसरी थेरेपी साउंड थेरेपी. रिम मंत्र का उच्चारण करेंगे. पहले स्लो रिम और फिर एक श्वास में रिम मंत्र का उच्चारण करना है. हार्ट के लिए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा मंत्र, पावरफुल मंत्र. रिम रिम
साउंड नहीं आ रही है बंदामी, म्यूटेड है. Use deeper and deeper concentration and try to feel rim, rim, rim. Touch your tongue to the palate and try to hold your breath. And try to read Rim Rim mantra. Up to the top and top to the up, each and every part. रिममय बन गई है. जीभ को बिल्कुल हिलने न दें. जीभ की स्थिरता को साधें. ट्रैफिक कंट्रोल, थॉट्स कंट्रोल, relaxation. Focus your mind on your big toe of your right foot. Concentrate your mind on your big toe up to the top of the head. Relax. 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 From your big toe up to the top of the head, each and every muscle, nerve, tissue, cell is being relaxed. Relax. 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 Give up your body, let your body become limp. Practice total relaxation with self-awareness. Your breath has become quiet and calm. Experience completely peace of mind. Inner silence. Your mind and body have become free from all kinds of stress, tension, and pain.
Focus your mind on your navel. Inhale and experience your navel is being extended. When you exhale, your navel is being contracted. Try to feel peace, inner peace, inner peace. Now experience your navel is being extended. Use deeper and deeper concentration. If you are inhaling for 5 seconds, hold for 5 seconds, exhale for 5 seconds, hold for 5 seconds. You can recite with the opposite Namkari mantra. One, inhale Namo Lui Sabkasana. Two, hold your breath, Namo Siddhana. Sadi Namo Vachana. Third, exhale your breath, Namo Ayaryana. Hold your breath, Namo Siddhana. Again, inhale Namo Arihantana. 9 times you can recite opposite Navakara mantra. Try to read each and every word is clear. Watch each incoming and outgoing breath. When you breathe in, your mind goes in. When you breathe out, your mind comes out. If thoughts are coming to your mind, touch your tongue to the palate and try to hold your breath for a while. Thoughts will go away again. Start to perceive your breath. Continue your practice. Observe your breath.
Take one long breath. Rub your palms and charge your face. Om Arham, Om Arham. मुझे प्लीज होस्ट बना सकते हैं अरविंद भाई? स्क्रीन शेयर मांग रहा है। मैं आपको को होस्ट बनाया समझी जी। हाँ, वही को होस्ट बना सकते हैं? बनाया था मैंने। नहीं है शायद। अच्छा अब ठीक है, अब हो गए? नहीं नहीं, हाँ अब हुआ है शायद। थैंक यू अरविंद भाई। ठीक, अच्छा लेकिन भारती का बना दिया था। कोई दिक्कत नहीं, होता है सब हमारे साथ। आज 21 श्लोक है ना अरविंद भाई? मुझे नहीं याद रहा समझ में। बोलो किसको याद है? 20 20 की 21? 20 नहीं हुआ पिछली बार? ना 21 ही होगा मेरा ख्याल। 21 हाँ शायद मेरे ख्याल से इसका भी 20 हो होगा। गया था। चलो नैना जी 21 आज, से हाँ नैना जी स्टार्ट कीजिए। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। वेरी नाइस। वंदे मन्येवरम हरिहरादय एव दृष्टा। यहाँ पे आचार्य मानतुंग जी क्या कह रहे हैं कि मन्य मीन्स ऐसा मानता हूँ, वरम मीन्स श्रेष्ठ। क्या मैं अच्छा मानता हूँ, वरम मतलब अच्छा या श्रेष्ठ, मैं ये श्रेष्ठ मानता हूँ, ये मैं अच्छा मानता हूँ कि हरिहरादय एव दृष्टा, मैंने हरिहर आदि जितने भी देवता है उन सबको मैंने देख लिया। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, लेकिन जो मेरा हृदय है वो आपको, त्वयि मीन्स आपको देखने के लिए ही, आप में ही मेरा जो हृदय है वो आपको देखने से ही संतुष्टि, तोष मीन्स संतोष, संतोष को एति मीन्स प्राप्त करता है। यानी ये अच्छा मानता हूं कि मैंने पहले हरिहर आदि को देख लिया और अब मेरा मन क्या करता है, जब से आपको देखा है ना तब से ऐसा लगता है कि बस आप में ही मेरे मन को आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब तक कोई चीज की हमको नहीं देखते हैं या प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसका अट्रैक्शन, जब तक अमेरिका नहीं देखा तब तक अमेरिका का अट्रैक्शन, जब तक लंदन नहीं देखा था तब तक अट्रैक्शन, जैसे ही देख लिया वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो आचार्य मानतुंग भी कह रहे हैं कि मैंने अच्छा हुआ पहले उनको देख लिया ताकि फिर मेरा मन कभी भी अट्रैक्शन की ओर जाए ही नहीं। तो मैंने अच्छा हुआ पहले उनको देखा और फिर आपको देखा, तो मेरा मन तो आप में ही संतोष को प्राप्त करता है। क्योंकि किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, कि आपको देखने से इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति मेरे मन को, मनः मीन्स मन को, कश्चिन मतलब किसी भी प्रकार से, इस भव में तो क्या, भव अंतरी मतलब दूसरे भव में भी मेरा मन है हे नाथ आपको छोड़ करके अन्य कहीं इच्छा भी नहीं करेगा। यानी आपको देखने के बाद में भवांतर में भी कोई भी मेरे मन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप में जो आनंद और जो शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि तीर्थंकरों का अपना अतिशय होता है और उस अतिशय के अकॉर्डिंग हमें प्रभु के पास में परम शांति मिलती है, क्योंकि उनके पास में वो आत्मज्ञान, और ऐसा लगता है कि भगवान ने जितना बेस्ट लिखा है ना और जितनी वाणी उनकी सत्य है ना, मुझे नहीं लगता कोई इतना बढ़िया साइंटिस्ट इस वर्ल्ड में हो सकता है। भगवान का एक एक शब्द ऐसे लगता है बहुत बड़ा, उस पर भाष्य लिखा जा सकता है। आगम को जब हम पढ़ते तो ऐसा लगता है एक एक शब्द एक मंत्र का काम है, करता है। तो ये भगवान की वाणी, और भगवान का जो वाणी तो छोड़ो, उनका शरीर का भी जो आभा मंडल है वो इतना ज्यादा प्योर होता है। तो वाणी तो प्योर होगी नो डाउट। तो हम तो बस प्रभु की वाणी के आधार पर अपनी जीवन नैया को चलाते रहें और इस संसार समुद्र से पार होते रहें। मैंने आपको देखने से पहले हरिहर आदि को देख लिया, ये अच्छा हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ।
उनमें सराग चरित्र को देखने के पश्चात तुम्हारा वीतराग चरित्र मुझे तोष दे रहा है। आपको देखने से क्या एक विचित्र मनोदशा हो गई। हे नाथ, अब इस धरती पर मेरे मन को हरण करने वाला अन्य कोई नहीं है। इस जन्म में क्या, भवांतर में भी कोई मेरे मन का हरण नहीं कर सकता है। I believe that it is good that I saw. That is before seeing you. I, after seeing their sarag, with attachment, conduct your vitarag. Conduct is satisfying. What happened on seeing you, O Lord? Now there is nobody who can capture my psyche. I not just it in this life. No one can capture my physique, even in my later lives. इस श्लोक का उच्चारण सभी प्रकार का वशीकरण, और आपको ये प्रकृति का संदेश है कि फैन सेड बी कूल, रूफ सेड बी सेड एम हाई एंड विंडो सेड टू सी द वर्ल्ड। यानी हमें भी अपने जीवन में फैन से क्या सीखना है कि कूल रहें, एनी टाइम शांत, और छत की तरह हमें भी अपने एम को प्राप्त करना है, मोक्ष को। और हमें अपने जीवन में दुनिया को देखने के लिए खिड़की ने कहा, क्या कहा खिड़की ने? द क्लॉक सेड एवरी मिनट टू प्रीसियस। और घड़ी क्या कहती है? हमारे जीवन का प्रतिक्षण बहुत कीमती है, और उस समय का अगर आपने उपयोग नहीं किया समय रहते तो बाद में पश्चाताप होगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हमें बहुत कीमती जो मानव जीवन मिला है, उसमें हम पल पल अपने लिए सोचें, अपने एक आत्मिक कल्याण के लिए हम थोड़ा समय को मैनेज करके अपने लिए कुछ करें। और नहीं करेंगे तो मानव जीवन बीत जाएगा, और फिर अंतिम में पश्चाताप ही रहेगा कि काश मैं पहले धर्म करता तो मेरी आगे की गति अच्छी होती। और मिरर आपको क्या कह रहा है? तो मिरर सेड टू बी अप टू डेट, यानी हमेशा हमें अप टू डेट, ऐसा नहीं हो कि संसार के पूरे कार्यों में तो हमें जो चीज हमारी नहीं है और हमको पता है कि ये चीज हमारे साथ नहीं चलेगी, लेकिन उसके लिए तो हम रात दिन सोचते हैं, आत्म कल्याण के लिए चिंतन करने का समय नहीं है। लेकिन बंधुओं, वही व्यक्ति ये चिंतन करता है मेरे पास समय नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान है जो ये बात कहता है मेरे पास समय नहीं है। आपको समय तो उतना ही मिला है, मैनेज करना नहीं आता है, ये आपकी हमारी कमजोरी होती है। तो हमें हमेशा दर्पण से क्या सीखना है? अप टू डेट रहें। द डोर सेड टू पुश हार्ड फॉर आवर गोल्स, यानी हमें दरवाजा कहता है कि हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना है। और आप देख रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं जो अपने जीवन में शरीर की दृष्टि से अक्षम थे, लेकिन चाहे अरुणिमा सिन्हा हो, चाहे हमारी और भी कोई भी हो, उन सबके लिए सुधा हो, तो सबने अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त किया संकल्प बल के आधार पर। एक के दोनों के पांव नहीं है, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति इतनी ऊंची कि इन्होंने अपने जीवन में माउंटेन की यात्रा कर ली, एवरेस्ट पर पहुंच गई। तो भाइयों और बहनों, जिसके पास संकल्प शक्ति होती है वो बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, और जिनकी संकल्प शक्ति कमजोर होती है वो हमेशा बहाने बनाते हैं। तो हमें बहाना नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, कम आए लेकिन क्वालिटी वाले लोग हैं तो 2 भी हमारे लिए बहुत है, 12 तो बहुत ज्यादा है। तो हम तो ये सोचते हैं कि आपके भीतर में आत्म कल्याण की भावना जगी है, बार बार प्रेरणा देने पर भी लोगों को नहीं होता है, और आपके भीतर में जो प्रेरणा जगी है वो भी हमारे जीवन में एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। तो हम सम्यक दृष्टि जीव बने, प्रभु के पथ के सच्चे अनुगामी बने, और हर चीज को अच्छी तरह से मैनेज करना सीखें। जीवन में हमेशा शिकायत नहीं करें, हमेशा अपने जीवन में कोशिश करें, अप्रिशिएट करें, एक दूसरे का हम सपोर्ट करें, एक दूसरे को हम सलाह दें, लेकिन कभी भी अपने जीवन में शिकायत न करें, ताकि हमारा जीवन आदर्श जीवन बन सकता है। तो ये भी, इसमें भी क्या कह रहे हैं आचार्य कि हे नाथ, हे स्वामिन, ओ लॉर्ड, हरिहरादय, यानी हरिहर आदि देवों को, अर्थात विष्णु शिव आदि को हमने एक्सेट्रा को हमने देख लिया, और
उसके बाद में हमने आपको देखा, इसीलिए मैं अच्छा मानता हूँ। आचार्य मानतुंग ने जो कैसी विकट परिस्थिति में आपको और हमको जेल में डाले और कुछ कहे लिखने का, तो शायद इतने पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, लेकिन आचार्य मानतुंग कितने पॉजिटिव थे, तो ये स्तुति उनकी बता रही है कि वो कितने सम्यक दृष्टि या यूं कहें कि पॉजिटिव एनर्जी के एक बेस्ट सोर्सेस थे, कि विकट परिस्थिति में भी उन्होंने ऐसी ऐसी कल्पना करके इतनी सुंदर भक्तामर की रचना की। तो पीरियड टू सिंग यू द सो, आई फील इट इज गुड। यीशु उनको देम दृष्टिसु देख लेने पर सिंह हृदयम हृदय हार्ट त्वयि आप में ही, अर्थात वीत राग में ही, ओनली यू, ओनली इन वीत राग। तोषम संतोषम, कंटेंटमेंट एति प्राप्त होता है, रिसीव्स भवता आपको यू विकसितेन देखने से सिंह। किम क्या लाभ हुआ, व्हाट बेनिफिट, येन अन्य जिससे कोई भी, बाय दैट भूवि इस भूमंडल पर, ऑन दिस अर्थ मानो मेरे मन को हर्ट, कष्टि न हरति कभी भी आकर्षित नहीं करता है, नॉन कैन कैप्टिवेट भवांतर जन्मांतर में भी, नॉट इवन इन लेटर लाइव्स। इस प्रकार ये श्लोक आपका कंप्लीट होता है। और अब हम आज आपको लेके जा रहे हैं, स्क्रीन शेयर हुई थी? हाँ हाँ हुई है ना? हाँ, हाँ जी, हुई थी, हाँ जी। थैंक यू। अब हम आपको लेके चलते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था, मुद्रा विज्ञान। और मुद्रा विज्ञान में हमने आपको कुछ इतिहास बताया था मुद्रा का, और आज हम कोशिश करते हैं कि आपको एकदम स्लोली, जितना मैं बोल सकती हूँ धीरे उतना मैं कोशिश करूंगी, और आज आपको एक एक एलिमेंट्स का एकदम व्यवस्थित बताते हुए आपको हम मुद्रा का बता रहे हैं। मुद्रा की हमने थेरेपी की बात की थी, कि जो हम मेडिसिन के साथ थेरेपी करते हैं वो 3 प्रकार की थेरेपी है, होम्योपैथिक थेरेपी, आयुर्वेद थेरेपी और एलोपैथिक थेरेपी। इसके बारे में आप सबको ध्यान रहे कि जो होम्योपैथिक थेरेपी है उसका लोग कहते हैं मीठी गोलियां हैं, शुगर की गोलियां हैं, कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन भाइयों और बहनों आपको बता दूं कि होम्योपैथिक से जो साइड इफेक्ट होता है वो एलोपैथिक और आयुर्वेद से कुछ भी नहीं उसके सामने। यानी होम्योपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट 3 पीढ़ियों तक प्रभावित करता है आपके शरीर में। और दूसरी बात है कि होम्योपैथिक की दवाइयों में स्टेरॉइड यूज किया जाता है, इसीलिए जब भी कोई होम्योपैथिक दवाई ले तो स्पेशल उस पे पढ़े कि उसमें स्टेरॉइड तो नहीं है, क्योंकि एक बार आपको ठीक करता है, लेकिन स्टेरॉइड ऐसी दवाई होती है जो बहुत सारे एलोपैथिक दवाइयों में आते हैं, इंजेक्शन में आते हैं, जो कि जिनको ब्रेन और घुटने की प्रॉब्लम होती है उनको स्टेरॉइड दिया जाता है। और स्टेरॉइड क्या करता है आपकी बॉडी में, एक बार इतनी फुर्ती लाता है कि ऐसे लगता है कि आपका शरीर पूरा स्वस्थ हो गया। और आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद में स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है कि आपको पूरा लॉन्ग लाइफ बेड पे रहना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, कभी भी कोई इंजेक्शन वगैरह दे तो स्टेरॉइड दे तो ध्यान रखना कभी नहीं लेना चाहिए, कितनी भी प्रॉब्लम हो। कोशिश करना है हम अपनी बॉडी में बीमारी हुई है तो उसका सॉल्यूशन बॉडी करेगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि एलोपैथिक दवाई ले तो पहले देखें कि स्टेरॉइड तो नहीं है उसमें, अगर हो तो उसको अवॉइड करें। तो होम्योपैथिक दवाई अच्छी है, ठीक करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। और साइड इफेक्ट्स एलोपैथिक के होते हैं वो आपको और हमको सबको पता है कि एक बार हमको लगता है हमारे शरीर को ठीक करती है एलोपैथिक दवाई, लेकिन हमारी जो दर्द की नर्व्स होती है ब्रेन की उसको सुला देती है, और आपको लगता है दर्द ठीक हुआ, दर्द ठीक नहीं होता है, दर्द दबा देता है और हमको फीलिंग होती है ठीक हो गया। और आयुर्वेद दवाइयों का कब साइड इफेक्ट्स होता है, जब बेमेल दवाइयां साथ में यूज की जाती हैं। और दूसरी बात है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का जैसे कुछ कुछ का फॉर्मूला है उसके साथ आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है शहद बहुत अच्छी दवाई, अब शहद के साथ गर्म पानी में ले तो ठीक है, और शहद को घी के साथ में ले तो जहर बन जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज जिसके साथ मेल करती है उसको लेने से तो ठीक है, बेमेल कोई भी जंगली पत्तियों को लेके आ गए और ये ग्रीन टी है, अगर आप यूज करें तो कभी पता नहीं कौन सी टी आपके लिए जहर भी बन सकती है।
तो हमेशा हमें पूरा ध्यान और उपयोग के साथ यूज करना चाहिए, ताकि ये दवाइयां हमारे पे इफेक्ट नहीं हो। और आयुर्वेद की दवाइयां मोस्टली गर्म करती हैं आपको और हम सबको पता है, क्योंकि ये सब हर्बल है और सूखे हर्बल है, तो सूखी चीज ऐसे भी हमारी बॉडी में गर्म करती हैं। तो जब भी हम आयुर्वेद की कोई दवाई लें, चाहे लौंग लें, चाहे इलायची लें, चाहे जिंजर लें, जो भी चीजें लेते हैं वो सबको हमेशा भिगो के लेना चाहिए। कांच के बर्तन में भिगोना चाहिए, स्टील या लोह के बर्तन में भी नहीं। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप हरड़ एक आयुर्वेद की बेस्ट औषधि जो माँ मानी जाती, उसको आपने स्टील के बर्तन में भिगो के ले लिया, तांबे में भिगो दिया, तो वो आपके बॉडी में जाके जहर कर सकता है। इसीलिए जितनी भी हर्बल है उसको कांच में भिगोना चाहिए, ताकि आपके शरीर में, क्योंकि जो भी कड़वा हर्बल होता है, कड़वी आयुर्वेद की दवाइयां होती हैं, वो लोह के साथ में मिलते ही जहर का काम करता है। और जितना भी स्टील है उसमें लोहा भी मिक्स आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हर्बल यूज करें आप कांच के बर्तन में भिगोएं, कांच के भांड में भिगोएं, ताकि आपके शरीर पर उसका साइड इफेक्ट नहीं हो। अब हमारे सामने विदाउट मेडिसिन कौन सी थेरेपी है? तो रेकी थेरेपी, मंत्र थेरेपी, साउंड थेरेपी, स्माइल थेरेपी। इन थेरेपियों की अभी मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि रेकी में क्या होता है। जैसे अभी हमारे भारती जी के सिर दर्द हो रहा है सपोज, और हमारे भारती जी के हस्बैंड उनके सिर पे थोड़ी देर हाथ रखते हैं, थोड़ा सा उनका सिर में तेल लगाते हैं, हल्का सा थोड़ी 2-5 मिनट दबाते हैं, भारती जी कहेंगे समणी जी मेरा सिर ठीक हो गया। किसके आधार पर? उन्होंने क्या किया? आपका दर्द खींचा? जी नहीं, आपका दर्द नहीं खींचा, फिर भी ठीक हो गया। कैसे? ये क्या थी? आपकी प्राणिक हीलिंग। मतलब आपकी हाई पावर एनर्जी थी, उनके बॉडी को टच होते ही उनका दर्द थोड़ा रिलीफ हो गया, कम हो गया। तो रेकी में क्या करते हैं? आपको दूर से भी एनर्जी दे सकते हैं, एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं। अगर आपको रेकी की क्लास लेनी है थेरेपी, तो एक दिन आपको पूरा रेकी पे हम थेरेपी एक क्लास दे सकते हैं, जिसके आधार पर पूरी रेकी की आपको पूरी थेरेपी समझा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप स्वयं अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। आप यहाँ लंदन में बैठे हैं और कोरोना का कोई व्यक्ति अगर इंडिया में है, तो आप उस एनर्जी के आधार पर, रेकी थेरेपी के आधार पर आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे करके उसको आप स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तीर्थंकरों के पास जाते हैं, हमें पॉजिटिविटी का अनुभव होता है, किसके आधार पर? बस यही रेकी ही है एक प्रकार से, कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही हम जाते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और हमें एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। मंत्र थेरेपी, और मंत्र क्या है? जैसे अभी मैंने आज स्पेशल मंत्र की आपको 2 मिनट 3 मिनट की साधना करवाई, कि अगर आप मंत्र अपने आप में प्रत्येक शब्द मंत्र है, और मंत्र अगर आप सही विधि से करते हैं, तो आपके भीतर में निरंतर पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो सकते हैं। और अगर आप बहुत फास्ट करने जाते हैं और रेगुलर नहीं करते हैं, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। साउंड थेरेपी में जैसे किसी को नींद नहीं आती है, तो हल्का सा म्यूजिक लगा के छोड़ देते हैं, गहरी नींद आ जाती है। और स्माइल थेरेपी तो इतनी अच्छी है सारे स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। अगर दुनिया में सबसे सस्ती अगर थेरेपी है तो स्माइल थेरेपी है। तो आप सभी कोशिश कीजिए, हंसना जाने, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी और रोने से कभी राज नहीं मिलता है। तो हमें तो हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। और प्रेक्षा थेरेपी, क्योंकि आपको पता है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा, और हम प्रेक्षा के प्रणेता भी आचार्य महाप्रज्ञ जी को कहते हैं, कि भगवान महावीर के बाद में प्रेक्षा ध्यान का जितना उन्होंने विस्तार किया, तो हमारे लिए आदर्श पुरुष थे। और उन्होंने इतना 13 वर्ष तक इस पे पहले खुद एक्सपेरिमेंट किया, गहन अध्ययन किया, उसके बाद में उन्होंने ये हमें एक थेरेपी दी, और इसके आधार पर अनेक बीमारियां लोग ठीक कर रहे हैं। और अब तो मेडिटेशन के इतने सारे रूप आ गए हैं कि हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि वो महापुरुष ने कितना पहले लिख दिया। और अब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो डिफरेंट टाइप की थेरेपियां हमें सुनने को मिलती हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपी, उसको भी मैं अभी कराऊंगी। प्रेशर कैसे देना, बस अंगूठे से देना है और इस प्रकार देना है। योगा थेरेपी और मुद्रा थेरेपी। तो चलिए हम सबसे पहले आज आपको मुद्रा थेरेपी के बारे में बताते हैं। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है, आप और हम सब जानते हैं। और ये 5 तत्व हमारे शरीर में किस रूप में काम करते हैं? तो सबसे पहला जो हमारे बॉडी में
एलिमेंट्स होता है फायर तत्व। और फायर तत्व, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फायर एलिमेंट्स इन द बॉडी? फायर एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टमक। जो हमारा तेजस का स्थान है वो कौन सा है? हमारा तेजस का स्थान हमारा स्टमक का भाग है। यानी आपको हमने जो परसों की क्लास हुई थी तेजस शरीर के बारे में, जब हमने रात को चर्चा की, तो तेजस शरीर का हमारा स्थान नाभिका है। जो आपको ये 2 डॉट येलो कलर के दिख रहे हैं, ये तेजस शरीर का पार्ट है और ये हमारा फायर का मूल स्थान है। और ये अगर आपका सही चलेगा तो आपका लाइफ अच्छा है। और जिस दिन ये फायर तत्व बॉडी से निकल गया, तेजस शरीर निकल गया, उस दिन हम कहेंगे ये आदमी जिंदा नहीं, मुर्दा है। तो फायर के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है। तो हमारा स्थान कहाँ है? पेट में। इट्स responsible for the transformation of food in the body. स्पेशलिटी क्या है? इट इंक्रीजेस द पावर ऑफ साइट, यानी ये आपकी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाता है। अब हम दूसरा है वायु तत्व। और वायु का स्थान कहाँ था? हमने आपको पहले ही बताया था, पैर का स्थान हमारा वायु का है। तो what is the significance of the air elements in the body? Air elements exist in the body between the heart to throat. हमारा मूल जो वायु का स्थान है एयर का, वैसे ये है, लेकिन जो वायु का प्रभाव है वो सबसे ज्यादा हमारे घुटनों पर पड़ता है। तो हमारे एयर का स्थान कहाँ से कहाँ तक है? आपने समझ लिया। हृदय से गले के बीच का स्थान है वो हमारा वायु का है। और आपने देखा होगा कि यहीं से पूरे शरीर को जो ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन जो हमारे पूरे शरीर को पहुंचता है, और वो ब्लड को पहुंचाने वाला ऑक्सीजन, और यही हमारा हार्ट का स्थान हम कह सकते हैं। जो कि हम अपने शरीर में ऐसा मानते हैं कि 24 आवर्स जो मशीन काम करती है, कभी रुकती नहीं है, जब तक लाइफ है तब तक चलती रहेगी। तो ये हार्ट मशीन और इसका संबंध एयर तत्व से। इट इज द बेसिस ऑफ मोबिलिटी एंड लाइवलीहुड, यानी आपके शरीर में जितना भी मूवमेंट का काम होता है वो सब एयर के आधार पर होता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? टच। आपने देखा होगा जिन लोगों के शरीर में अगर वायु तत्व अच्छा है तो उस व्यक्ति का शरीर क्या होगा? बहुत अच्छा स्पर्श लगेगा, उसका सुहावना। और जिसके बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती है वो बॉडी का पार्ट कड़ा हो जाता है और वो टच हमें अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम आपको थोड़ा थेरेपी वो समझाई, क्योंकि मुझे ये सारी थेरेपी आपको करवानी है कवर 1-1.5 महीने में। तो थोड़ा अब आ जाइए एक्यूप्रेशर में भी। अभी अपने एलिमेंट्स को समझा, तो अब आइए थोड़ा एक्यूप्रेशर को समझें। उस दिन मैंने आपको फोटो हाथ पे ऐसे करके दिखाया था, मे बी आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आज आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर का जो ये अंगूठी का भाग है वो हमारा ऊपर का भाग है, वो सिर का भाग है। ये 2 हमारी आंखें हैं। जैसे मनुष्य का जो स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा हमारी गर्दन में 2 जॉइंट्स हैं और हमारे अंगूठे में भी 2 जॉइंट्स हैं, ठीक है। दूसरा है कि हमारे हाथ और पाँव में 3-3 जॉइंट्स हैं, तो हमारी अंगुलियों में 3-3 जॉइंट्स हैं। तो ये पहली बात हो गई प्रकृति के आधार पर हमारे शरीर का स्ट्रक्चर। दूसरी बात है कि हमारे शरीर की जो ये 2 मिडल की फिंगर है, स्पेस फिंगर और दूसरा रिंग फिंगर, ये दोनों हमारे लेग कहलाते हैं, पाँव कहलाते हैं। और ये जो दोनों साइड वाली अंगुली हैं, जो स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये हैं हमारे दोनों हाथ। तो मैं अभी आपको बाद में एक बॉडी का स्ट्रक्चर हाथ पे करके दिखाऊंगी, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब आपको समझना है कि अपने शरीर में कौन से पॉइंट्स का कहाँ पर स्थान है। तो उसको समझने के लिए आपको ये सबसे पहले आज सिर्फ सिर का भाग समझे, सिर की बीमारी का समाधान समझे। और वो क्या है कि ये आपका आगे का जो भाग है हाथ का, वो आगे की दर्द होता है तब हम इस पर प्रेशर देते हैं। जब आपका सिर का पीछे का भाग दर्द होता है तो हम अंगूठे का जो नाखून खत्म होता है उसके नीचे वाले पर प्रेशर देते हैं, तो पीछे का हेडेक आपका ठीक होता है। जब आपके साइड में अगर दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, साइड के भाग में प्रेशर देते हैं।
लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के पार्ट पे देंगे, और राइट साइड है तो राइट साइड के पार्ट पे हम प्रेशर देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया सिर से रिलेटेड। अब दूसरी बात आपको ये समझना है कि आपका हेडेक है वो किसके कारण हो रहा है। एयर के कारण हो रहा है, यानी वायु के कारण हो रहा है, पित्त के कारण हो रहा है, या कफ के कारण हो रहा है। तो इसकी पहचान करने के लिए आपको नव देखना सीखना पड़ेगा, और नव भी देखना आज मैं सिखाऊंगी आप सबको। और कभी ये खुलेगा तब आप आओगे तो आपको रियल हाथ पे दिखा के, आपको बता के, आपको पूरा अनुभव करा सकते हैं। तो आपके सिर के लिए सबसे बढ़िया पहला ये ऊपर का पॉइंट है, आपके आईब्रोज के चारों ओर पॉइंट है, ये आपका सिर का है। दूसरा आपके सिर का ये मिडल भाग है, और तीसरा पॉइंट है वो दोनों साइड वाले पॉइंट, और चौथा पॉइंट है आपके कान के नीचे और कान के ऊपर वाले पॉइंट, ये, और नाखून के पीछे वाला पॉइंट। अगर आप खुद के नहीं कर सकते तो आपके घर में, सबके घर में चिटकन होगी, या आपके पास रबड़ होगा, या आपके पास रस्सी होगी। तो जब भी सिर दर्द हो तो 2 या 5 मिनट पूरे अंगूठे के भाग में आप रस्सी या रबड़ अच्छे से एकदम टाइट कर ले, 2 या 3 मिनट। आप देखना चमत्कार होगा, टैबलेट जैसा काम आपका सिर का ये पॉइंट्स करेगा, और आपको तुरंत सिर से रिलीफ मिल जाएगी। दूसरा आपको सिर से रिलेटेड पॉइंट हमारे शरीर में, और वो है आपका, मैं एक बार स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूं ताकि आपको अब मैं थोड़ा हाथ पे बता रही हूं। ये है आपके बॉडी का स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि आपके 2 पाँव हैं वो सीधे रहते हैं, तो ये 2 आपकी उंगलियां सीधी रहती हैं, और ये आपके हाथ है जो लटके हुए रहते हैं। अरविंद भाई करिए साथ में। हाँ, तो आप देखिए कि आपके 2 बीच वाली अंगुलियां सीधी है, वो आपके पाँव है, पाँव आपके सीधे रहते हैं, और आपके ये 2 हाथ है वो लटके हुए रहते हैं, वो 2 आपके हाथ हैं। ये आपका सिर है, सिर कभी किसी के साथ नहीं मिलता, हमेशा अलग रहता है। तो ये आपका अंगूठे का भाग है वो अलग ही रहता है, इसीलिए इसमें क्या है, सिर का भाग है। इतना समझ में आया अरविंद भाई? ये 2 हमारे पाँव हैं, बीच वाली अंगुलियां, हाँ 2 साइड वाले हाथ हैं, हाँ और जी ये हमारा सिर भाग है। ठीक है, हाँ इतना जी समझ में आया। अब ठीक। दूसरी हम बात बता रहे हैं कि जो आगे वाला जो हमारा भाग है वो हमारे आगे के बॉडी से रिलेटेड, जो भी पेन होता है वो आगे की बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा पीछे वाला भाग है वो हमारे, सॉरी हाँ एक बार, सॉरी हाँ कोई जरूरी कॉल था। आपको इतना समझ में आया? ये 2 बीच वाले क्या है, हमारी पाँव, साइड वाले क्या है, हमारे हाथ, ये हमारा क्या है, सर सिर। ठीक है, आगे वाले भाग का आगे का पोर्शन, पीछे वाले भाग का पीछे का पोर्शन, साइड वाले भाग का साइड पोर्शन, राइट साइड का हो तो राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का हो तो लेफ्ट साइड का। इतना समझ में आया सबको? हाँ जी अब हम आपको सिर दर्द के 5 पॉइंट बता रहे, ठीक है? समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नहीं, नहीं आई तो आप 4 बार पूछना, लेकिन जब मैं पूछूं तो मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, मैं पूछूंगी वापस सिर दर्द के, मुझे 5 पॉइंट बताओ रेणु जी। तब रेणु जी को मौन नहीं रखना है, अरविंद भाई के साथ मौन रखते चलेगा, मेरे साथ नहीं। तो चलो, ये है आपको 1 पॉइंट पहला ऊपर वाला। आपके पास पेन हो तो आप देख सकते हो, पेन से भी करके। ये ऊपर का जो भाग है हमारा, ये सिर का भाग है। ठीक है, दूसरा है आपके अंगूठे के पीछे के भाग में, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, तीसरा है आपके दोनों साइड से भाग में। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक रस्सी लेना है, चाहे तो एक रबड़ लेना है, जो भी आपके पास में पॉसिबल हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे रैप करना है इसको पूरा ऊपर तक, 2, 3, 5 मिनट जितना आप सहन कर सकते। नीचे से शुरू करते हुए ऊपर आना है, और ऊपर से करते हुए वापस नीचे जाना है। समझ में आया?
आपके पास जो भी टूल हो, अभी मैंने तो क्या किया, ईयरफोन ले लिया, बट आप ईयरफोन मत लेना, टूट जाएगा टाइट करोगे तो। जस्ट आप रबड़ हो तो सबसे बेस्ट रबड़ है, आप जितना टाइट कर सकते हो उतना बेस्ट है। 2-3 मिनट में आपकी यहाँ से नर्व्स ब्लड रुक जाएगा, तो वहां पे तुरंत प्रेशर होगा और वहां की ब्लॉकेज नर्व आपकी खुलेगी और आपका सिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको अंगूठे में समझ में आया। अब आपको मैं दूसरा पॉइंट बता रही हूँ। जो हमारा ये हाथ होता है, ये हाथ का जो हमारा ये जॉइंट है, इस जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर ठीक मिडल का भाग लेना है हमको, हाथ को स्ट्रेट करके। ये जो हमारा भाग है वो है हमारा सिर दर्द का बेस्ट पॉइंट, मास्टर पॉइंट। अगर आप अपने नहीं कर सकते तो क्या करें, जैसे सपोज अरविंद भाई को सिर दर्द हो रहा है, होगा नहीं, कभी हो भी नहीं, शुभकामनाएं हैं। सपोज बता रहे हो रहा है तो क्या करें, रेणु जी यहाँ पे एक दुपट्टा ले और एकदम टाइट बांधे 2 मिनट के लिए उनको। अरविंद भाई को करके बता सकते हैं, सबको एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। रेणु जी बढ़िया सा आज तो निकाल सकते हैं, गुस्सा निकालना है उतना। सबनी दूर बैठी है। दूर कहाँ है, वो नीचे है, मैं ऊपर हूँ। तो ये नीचे आ जाएंगे ना आपके पास, आपका थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेगी। तो सबको समझ में आता है, ये टाइट करके दिखाते ना, पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, वो कपड़े की गांठ कहाँ पे आना चाहिए, ये मुझे बताने के लिए एक्चुअली में। तो आपको समझ में आया, एक बार आ रहे रेणु जी, बहुत समझदार है, इशारा समझते हैं वो। तो यहाँ पे आपको दोनों हाथ से भी, आप दूसरों के करें तो दोनों हाथ से कर सकते हैं। और सपोज आप प्रेशर नहीं दे सकते तो बेस्ट है कि आप एक दुपट्टा या एक कॉटन कपड़ा पतला वाला लें, या एक रस्सी या एक कुछ भी लें, और उसको एकदम टाइट पूरा गांठ करके, जैसे मैं तो लेके बैठी हूँ, लेकिन मेरा शायद आपको वैसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि इस पे पूरा प्रेशर देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे बस ये मिडल में रहना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रहेगी। आ गई रेणु जी, वाह, मेरे साथ ही करेंगे, वाह वाह। ये आपको जितना 4 टाइट, उंगली ऊपर। हाँ, ज्यादा टाइट कर। एकदम टाइट करना, 4 अंगुल ऊपर करना है अरविंद भाई। अभी मैं क्या ज्यादा टाइट कर। वो गले की जब जाएगी ना। अभी तो प्रैक्टिस कर रही है, तो सर दर्द चला जाएगा ना, वरना। अब कुछ चला जाएगा। पता ही नहीं है, अरविंद भाई का खुद का सिर दर्द है, रेणु तो बोलती नहीं है, तो एकदम शांत रहती है। हो गया। अरविंद भाई का सिर दर्द करवाती नहीं है, इसलिए जरूरत ही नहीं, अरविंद भाई है ना। चलो, समझ में आया, पहले इतना आगे बढ़ूं अभी। हाँ जी। अब आपको सिर दर्द का अंगूठे के 4 पॉइंट समझ में आ गया, आगे पीछे का, साइड का। अब आ जाओ आप यहाँ पे, आपका ये वाले पॉइंट है सिर के। ठीक है, ये सीधे सीधे चले जाओ, सीधे सीधे जाते जाते पूरे आपको, ये पूरा आपको सिर का पॉइंट है, ये वाला मिडल से पूरा आपको पीछे तक जाना है, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के आपका जो ये गड्ढा वाला भाग है वहां तक लेके आना है, और फिर झटके से छोड़ दो ऐसे। समझ में आया। उसके बाद में आपको ये वाला एक, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट्स है। जो हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर के पास जाती है ना, तो आपको अभी आईब्रो करते हैं सबका, सिर दर्द का आईब्रो। तो आपको क्या करना है, ऐसे जब भी सिर दर्द हो, ये तो बहुत इजी है, खुद भी कर सकते हैं। और फिर इसके नीचे वाला पॉइंट है आंख के और इसके मिडल में, और किसी को सर्दी और कफ से सिर दर्द है तो उनके लिए ये 2 पॉइंट है यहाँ पर भी। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत मुश्किल से सांस आ रहा है, सिर बहुत कफ से भारी हो रहा है, तो आप 2 अंगुलियों से एक साथ में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आपको, अगर जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम प्रेशर के साथ, सिर्फ पुश करने से नहीं होगा, साथ में प्रेशर देकर के आप राउंड में करें। उसके बाद में आ जाइए आपके कान के नीचे का, ये जो पॉइंट होते हैं वो हमारे सिर के होते हैं, कान के नीचे का, ठीक कान के यहाँ पर। हम्म 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 2 पॉइंट होता है, एक होता है कान के जस्ट एंड होते ही, एक कान के नीचे जो गड्ढा है वो वाला पॉइंट। आ रहा है समझ में सबको।
समझ जी, घुमाना है या सिर्फ प्रेस ही करना है? घुमाना है, घुमाना है। घुमाओगे तभी तो यहाँ पे पूरी जो टाइट हो गई आपकी नर्व्स वो खुलेगी, और खुलते ही आपको एकदम ब्लड सर्कुलेशन होते ही आपको रिलीफ मिलेगी। मैं वही बोल रही, खाली पुश नहीं करना है, राउंड में आपको प्रेशर के साथ राउंड करना है, घुमाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ घुमाना है। उसके बाद में ये जो 2 कंधे हैं ये भी हमारे सिर से रिलेटेड है। जो कंधे का मिडल का भाग है वो भी आप घुमा सकते हैं। ये वाला, ये जो भाग होता है ये हमारा सिर का होता है, पीछे वाला भाग, जो ऐसे करके देना है आपको प्रेशर। इसमें आप पूरे चारों अंगुलियों को यूज कर ले सकते हैं, और ऐसे लेके ऊपर आना है आपको, ऐसे खींचते। पहले प्रेशर दो चारों अंगुलियों से, और फिर ऊपर उठो। चलो समय हो गया है। ऊपर 5 मिनट। मतलब बाजू को ऊपर करना है। बाजू को ऊपर करते हुए ऐसे झटके से लाना है, ताकि नेगेटिव एनर्जी कहीं पे भी कुछ हो तो वो सब निकल जाए। ऐसे दबाते हुए ऊपर आना है आपको, दबाते हुए ऐसे प्रेशर करते हुए गोल में, फिर ऐसे लाके छोड़ना है। कभी आऊंगी तो करके बताऊंगी रेणु जी, अच्छे से करके बताऊंगी। पता नहीं अरविंद भाई कब बुला रहे हैं। हमने ये अभी कोविड का शुरू हो जाए, खत्म हो जाए, बस फिर हम तो इसकी वेट कर रहे हैं, तब तक रिस्क नहीं लेंगे। अरविंद हम तो चाहते अभी आ जाओ, पर आ अभी गई मुश्किल एक बार, बर्मिंघम आ गई, नहीं तो कहीं मन में नहीं रहता। एक बार आके गई। नहीं, एक बार बार आएंगे, ऐसे नहीं अभी तरह कोविड को जाने दीजिए। अरविंद भाई अभी 4 मिनट है, किसी को एक बार पहले इतना मैं सोचती हूँ पहले डाइजेस्ट हो जाए। ठीक। पहले इससे रिलेटेड सभी एक बार, या तो मेरे को पहले कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, नहीं तो एक बार सभी एक बार कर करके बताएंगे, तो क्या होगा, सबको पूरा अच्छे से एकदम रिमाइंड होगा। और अच्छा, पहले पूछ लेते हैं, किसी को सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन हाँ। पूछना हो तो पूछो। ओहो, हमारी ज्योत्सना बहन भी आ गई। मैं तो कब से हूँ, मेरा वीडियो बंद था समड़ी जी। हमने आप आपको नहीं आप देखा। ये कपड़े धो रही थी? नहीं, थोड़ा किचन में थी, वीडियो बंद था, लेकिन मैंने सारा सुना है। अरविंद भाई को पता है, मैं करीबन 5 ज्वाइंट हो गई थी। देख लिया था, हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं अच्छा है। मेरे को सिर्फ ये पूछना था समड़ी जी कि ये मतलब खाना खाने के बाद कभी सिर दर्द हुआ तो कर सकते हैं, या मतलब खाली पेट ही करना चाहिए? नहीं, एक्यूप्रेशर आप कभी भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा तुरंत खाना खाते, जैसे अभी ये गर्दन वाले पॉइंट है या थोड़ा सा पीछे वाले पॉइंट है, वो कभी खाया हुआ निकल सकता है, तो अपन बाकी नॉर्मल पॉइंट हाथ वाले वगैरह कर सकते हैं, सिर का कर सकते हैं, लेकिन ये पीछे वाले जो पॉइंट है ना, उस पे थोड़ा सा वो लगता है, कभी किसी का जीव दौरा या वो हो तो उल्टी न हो, इसके लिए। बाकी एक्यूप्रेशर का ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसा कहते हैं कि एक्यूप्रेशर करने के बाद में आधा घंटा तक कुछ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ताकि आपका क्या ब्लड सर्कुलेशन, जो आपने बहुत अच्छी आधा घंटा सपोज थेरेपी कराई है, आपके पूरी बॉडी में एकदम हीट, मतलब पूरा गर्म हुई है, बॉडी पूरी एक्टिव हुई है, तो अब वो एनर्जी वापस अपने नॉर्मल स्थान पे आके एकदम रिलीफ हो जाए, तो क्या होता है, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी पूरी एनर्जी वहां पे काम करेगी, और आप खाना खा लेते तो फिर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपकी एनर्जी, फिर डाइजेस्ट के लिए एनर्जी हाई चाहिए, तो फिर वहां पे काम करने लगती है, तो वो फिर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, आधा घंटा नहीं खाना है, कुछ ऐसा, ठीक है ना? बाकी कर सकते हैं, करने के बाद आधा घंटा तक नहीं खाए तो अच्छा रहता है, वैसे खा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। नहीं खाए तो अच्छा रहता है ऐसे। ठीक है। अच्छा सारा दिखा दिया, वो डेली लाइफ में ये सारा जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारे अरविंद भाई ने कहा आप थोड़ा स्लो करूंगी, मैं तो इसके कारण मेरा थोड़ा स्लो होगा, मैं बहुत स्पीड में करती हूँ तो। मैं इसको रिकॉर्डिंग को YouTube पर डाल दूंगा, जैन आश्रम की, ताकि आप दोबारा देख ले, तो इसको आपको अच्छी तरह और समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू अरविंद भाई। और वंदा में एक मुझे पूछना था। हाँ पूछो। आयुर्वेद के हम कहते हैं कि अदरक हो या कुछ भी स्टील में नहीं उसको करना चाहिए। हम स्टील के बर्तन में हम आदू डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, और फिर उसको उकालते हैं पानी में। वो आप कितनी देर रखते हैं, 10 या 15 मिनट या आधा घंटा, है ना नैना जी? हम जैसे 4 घंटे 6 घंटे। अच्छा, वो ऐसे नहीं। अच्छा, तो तब तक उसमें क्या होता है, उसका लो का वो खींचने लग जाता है, लो की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उस चीज पे इफेक्ट होने लग जाती है, तो वो ऐसे यूज कर सकते थोड़ी वो देर। आप गर्म कर रहे हो ना, तो आग से उसका उतना प्रभाव नहीं होता है, आग का खुद का तेज प्रभाव होता है, तब तक स्टील का प्रभाव नहीं झलता है।
ओके रखे तो मतलब गर्म करने के बाद फिर छोड़ना गर्म नहीं करने के चाहिए। बाद में बेस्ट है कि हम उसको छान के स्टील में नहीं रखे, कांच के कांच में रखिए, बराबर, कांच में। गुड आइडिया, भारती बहन पूछो। थैंक यू। भारती बहन, अच्छा लीव ले ली नहीं? भारती बेन का म्यूट है। भारती बहन તમે પણ પૂછી શકો। हाँ, आज का अभी हो सब जो बताया क्या? हाँ, आज का जो एक्यूपंक्चर था वो सब सिर दर्द के लिए था सिर्फ। हाँ सिर के लिए ना। तो क्या सर दर्द हो गया आपको? ये सर दर्द दूर करने के लिए अभी- है अतुल भाई। अभी से शुरू हो जाएंगे हाँ, फिर से हाँ। करके। नहीं अभी तो और बाकी बहुत एक्यूप्रेशर पंचर होंगे, लेकिन ये जो आज का था वो Topic सिर्फ टॉपिक सिर्फ सर आज दर्द से, क्योंकि मैं सारे एक साथ बताऊंगी ना तो क्या होगा भरत, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक एक डिजीज याद पे, भी नहीं रहेगा समझ जी फिर। हाँ, अब जैसे ये एक एक का आपको क्या अच्छे से लर्न होगा और आप एक वीक तक पूरा एक्सपेरिमेंट करना, जिस पे भी हो तो उसको बताओ, उसको फोन करके बताओ ये आप करो, आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे किसी की मेमोरी भी लॉस हो रही है तो वो यही ज्ञान मुद्रा करेंगे, क्योंकि यही हमारा सिर का भाग है। और जब एयर के साथ में आपका फायर मिलेगा, तो आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? एयर और फायर से ही तो बनती है। तो ये आपके दोनों मिक्स होते ही आपका सिर भी ठीक होगा। ये भी सिर दर्द का एक पॉइंट बताते हैं हम, सिर का उपाय, गहरी नींद का भी उपाय बताते हैं। और भगवान ने ज्ञान की भी मुद्रा यही बताई है, केवल ज्ञान भी भगवान इस मुद्रा में प्राप्त करते हैं, बुद्ध ने भी इसमें। तो ये आप रात को क्या करो, एक सेलो टेप लगा दो, यहाँ पे लगा के दिखाऊं क्या? अच्छा सेलो टेप लगा। हाँ, आज ठीक है। तो आपकी पूरी रात ये ज्ञान मुद्रा रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, बुढ़ापा में मेमोरी लॉस होगी नहीं। अच्छा मैं करके वेरी नाइस। दिखाती हूँ, आपको जी, सेलो दो टेप लगा उंगलियां के या दिखाती हूँ। तीसरी को भी साथ लगाना। मैं आपको अभी सेलो टेप, मैं प्राण सारी मुद्रा। चीजें आज लेके बैठी हूँ एक्यूप्रेशर का। प्राण मुद्रा हो गया रेणु जी, वो प्राण मुद्रा। नेक्स्ट मैं आपको चुंबक का चिकित्सा इसके साथ सिर दर्द का भी अगर आपको समझना होता तो साथ में सुजोग कैसे यूज करते हैं, इसी के साथ आप चुंबक यूज कर सकते हैं, इसी के साथ आप कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी कंफ्यूजन नहीं करने के लिए एक ही चीज पहले आपको माइंड में कर रहे हैं। जैसे सपोज ये सेलो टेप है आपके पास में, या कोई भी प्लास्टिक वाली टेप हो या मोटी वाली टेप हो तो और अच्छा, ब्राउन वाली आती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, ऐसे कर लिया ना तो अब पूरी रात आपकी ये ज्ञान मुद्रा रहेगी। आपको कुछ वैसे भी डिस्टर्ब नहीं होगा, लूज किया, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं किया कि आपको कंफर्टेबल नहीं लगे। पूरी रात आप ये मुद्रा में भी रख सकते हैं, ऐसा इजी कर सकते हैं। मतलब तुमने जी दिखता नहीं है पूरा। नहीं दिखता ज्योत्सना बहन, और दिखाऊं, आगे लाऊं, हाँ बस अभी दिखा। आपके मानचेस्टर पहुंच जाऊं, लेके आऊं? आ जाओ मैनचेस्टर आ जाओ। अभी तो हाँ। अभी तो सब जगह ऐसा हाँ। ब्लॉक है कि अभी पूछो मत। बर्मिंघम में। अभी बर्मिंघम में है। जरूर जरूर। हाँ। भारती जी के घर आए नहीं है इसलिए बाकी है अभी आना। हाँ अभी अभी इस खाली टाइम अर्चना आओगे जी ना को तो और आप अरविंद भाई को ही जरूर नाम मिला है, आना। अभी बाकी सबका बाकी है। हमने जी जब आज जैन आश्रम आ जाओगे सबके घर पहुंच जाएंगे। हाँ जरूर हाँ। जरूर। चलो तमनी जी है ना लंदन से अरविंद भाई मतलब ट्रेन चलाने वाले हैं, तो लंदन से बर्मिंघम होके मैनचेस्टर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक ये यू, देखो। बर्मिंघम वाले भी साथ में आ जाएंगे हम हमारे साथ इधर। थैंक